Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to all panelists and participants. As you know, that the State Bank of Pakistan has taken a new initiative of Roshan Digital Account. The initiative is focused on the overseas Pakistanis. Now they can open accounts in Pakistani banks without requiring their physical presence either in Pakistan or any government office overseas. In this background, today's webinar is being organized. We are fortunate to have a panel of eminent speakers today. High Commissioner Raza Bashir Tariq will deliver opening remarks. The panelists include Syed Irfan Ali, Mr. Zulfikar Khokhar, and Mr. Arshad Mahmood Bhatti. I shall introduce them at the time of giving them floor. In addition, we have representative of some commercial banks with us, like the Allied Bank, Habib Bank, Bank al-Falah, Faisal Bank, Mizan Bank, Standard Chartered Bank, and National Bank of Pakistan. We shall seek their views if needed during the question and answer session. For questions, I must clarify that due to the paucity of time and the new security protocol, we are requesting audience to type their questions in question and answer section. We are not giving floor to them. In fact, the audience can start writing their question during the presentations as well. It will save a lot of time. The Roshan Digital Account Initiative is a major development for promoting investments while addressing a long-standing demand of the Pakistani community abroad. The initiative aims at integrating the overseas Pakistanis into the country's banking and payment system by giving them access to a full range of banking services and investment opportunities in Pakistan from their living rooms. मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये वेबिनार बायलिंगुअल होगा. आप उर्दू या अंग्रेजी जिस जुबान में चाहें अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं. इस वेबिनार का मकसद उन सवालात का जवाब ढूंढना है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जहन में रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में पैदा होते हैं. हमें इस मौजू पर कई ईमेल्स मौसूल होती हैं और ज़ाती तौर पर भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कई सवालात उठाते हैं. आमतौर पर ये सवालात इस तरह के होते हैं कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या ये अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग के उसूलों के मुताबिक होगा, इन अकाउंट्स के जरिए कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मुयस्सर हैं, क्या इन अकाउंट्स के जरिए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. इंशाल्लाह आज हम अपने इन सारे सवालात के जवाब इस वेबिनार में हासिल कर पाएंगे. Without much ado, I shall invite High Commissioner Raza Bashir Tariq for opening remarks. High Commissioner Raza Bashir Tariq is one of the most senior diplomats in Foreign Service of Pakistan. He has served in Pakistan embassies in Manila, Brussels, Tokyo, and New York. He has worked as Pakistan's High Commissioner to Kenya. Before joining as High Commissioner in Canada, he also served as Pakistan's permanent representative to the United Nations office in Nairobi. Over to High Commissioner Raza Bashir Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब आपका for putting this together, and of course the State Bank of Pakistan, which is doing extremely good work. Now I have like a technical brief kind of a thing in front of me. But I feel that if I just read it out, it's basically going to sound, maybe it will seem redundant in view of the input that we will have from the real experts on the subject. So I'll confine myself to just some observations when it comes to accounts by overseas Pakistanis. One obvious concern is how secure are the deposits? Secure from any sequestration, like we saw in case of the money that had been deposited by overseas Pakistanis in the Qarz Utaro Mulk Samaro scheme, and they felt a bit let down. I'm sure State Bank is fully aware of that. Then obviously the concerns that flow from
the security of online transactions. We have seen some, I don't want to name the institution, but we have seen uh, people's, details of their accounts and their debit cards ending up on the dark web, so to speak. So those concerns are also there. So how strong is the encryption and how secure are the transactions? And of course, the CG has already mentioned, the whether these things will be Sharia compliant or not. And if not, will there be any special arrangement to make sure that that happens? And then obviously insurance of the account. So God forbid if something were to happen, or the bank certainly is not doing so well, kind of like the BCCI fiasco. So what will happen to the money? So I think it will be extremely helpful to address these questions. And I would also urge the State Bank to try to keep it as simple as possible, in the sense that perhaps some FAQ page on the website, which we will also help disseminate. That will be quite helpful. And the feeling that one gets, because sometimes, we have accounts in Pakistan, and it has been quite traumatic to have those accounts sort of, unblocked for verification purposes and so on and so forth. And for everything, the form that we get, again, I will not name the bank, but I'm sure this is across the board. It looks like, you're trying to, God knows, buy a nuclear power plant or something. There are so many pages and so many details are required. So we have to, take capacity issues into view. Everybody is not tech savvy. Everyone is not comfortable with filling out forms. So let's try to make it as user-friendly as possible. So I will now defer to our esteemed expert panelists on the subject. And I hope all participants benefit from this webinar. Thank you very much. Thank you, High Commissioner Saab. Now I invite Syed Irfan Ali. He currently leads Deposit Protection Corporation of Pakistan as Managing Director under the Central Bank of Pakistan. Prior to his current role, Mr. Ali held position of Executive Director, Banking Policy and Regulation Group and Banking Supervision Group at State Bank of Pakistan. He has also served as Director General, Financial Monitoring Unit. His expertise includes banking and non-banking regulations, payment systems, financial markets, and fintech. He is a prolific speaker and covers a wide range of industry subjects. Over to Syed Irfan Ali. Thank you, Abdul Hamid Saab, and thank you, the Ambassador to Canada of Pakistan. I'm really grateful for this introduction, and as you said, as it would be bilingual, so I'll try to speak both in Urdu and English so that nobody misses out on what I have to say. I'll be followed by my colleague Arshad Bhatti Saab. He'll give the salient features of Russian digital accounts, and we will have Zulfikar Khokar talk about the Pakistan Remedies Initiative. Now, specifically, let's set the mood here, and that is primarily that Russian digital accounts are directed towards non-resident Pakistanis, wherever they are living in the world. And this was done with an objective to make sure that they are connected to Pakistan digitally. So doing that, we selected 8 banks that had the necessary technical wherewithal to withstand such a mammoth task. And here we are. We launched it on the 10th of September, and we are sitting on the 4th of November, and we are already touching close to about 40,000 accounts have already been opened all over the world, and we are getting about 1,000 accounts a day are being opened in the financial sector.
Having said that, you are all, obviously all of you are already aware that you send remittances to Pakistan. So that channel is very much already there. And these digital accounts are meant to be an affair whereby you can use them to pay to pay your bills, your parents' bills or whoever bills you want to pay. You can invest in the stock market. You can invest in DHA, Defense Housing Authority. They are offering that product, and you can buy the Naya Pakistan syndicates and the Islamic Naya Pakistan syndicates. And the rates that are being offered are exceptionally high. And that has been done specifically to attract the investment of overseas Pakistan. So this is the experience. Yes, now I'd like to address the questions that were raised by the Honorable Ambassador. And the Ambassador would be pleased to know that the State Bank of Pakistan, being a professional body, engages with the Toronto Center as far as its banking supervision is concerned. So Canadian regulation is, being the Toronto Center being the main regulatory forebearer of financial sector regulation is providing guidance to the State Bank of Pakistan in its supervisory policies. In the past 73 years of our existence, we haven't let banks fail, and there is not a simple depositor on the high street of Pakistani cities who can claim that he has not been paid his deposit. So deposit is very much protected up till and so no banks have in fact failed, or wherever we have had problems, we have merged banks or taken steps to to let them recover. Now, so your money, ladies and gentlemen, and the participants of this meeting, your money is safe with Pakistan. Pakistan has always honored its international commitments. Your money is, and our financial sector is very tightly regulated. And that is why the regulated part, that is why they ask so many questions. But specifically for the Russian digital accounts, this product was developed keeping in view the overseas Pakistanis and keeping in view the fact that we will ask a minimum level of questions. And that was done in the backdrop of the fact that we have now digitally available channels whereby financial sector can now carry out background checks themselves. And as you would all be aware that Pakistan under the FATF action plan is already compliant of 21 action items out of 27. And by the way, for your information, the financial sector of Pakistan is compliant to all the steps that were required to be taken. So financial sector is completely compliant as far as the FATF actionable points are concerned. Now, yes, Ambassador Saab, we do have frequently asked questions. They are placed on the State Bank of Pakistan's website, and they are also placed on the commercial banks' websites, and you can see them. As far as the dark web goes, as the name says, we don't have it. But whatever hacking has taken place, yes, there has been just one hacking incident in the past 10 years in Pakistan, and there too the depositors weren't hurt. It was the bank that paid the price. So we have kept limits on the risk that the banks can take in their international commitments, specifically the payment systems. The depositors will not be hurt by such transaction at all. Now, we have mentioned about the ambassador also referred to the PCCI fiasco, sir, that is more than 40 years old now. So that is something that is gone, and PCCI wasn't a Pakistan-based institution anyway. It was UAE and London, and not a single depositor of BCCI Pakistan suffered. All were paid bank, and the Pakistanis in this meeting would know that Bank Al Falah, as they see it now on our high streets, was in fact the old BCCI. So nobody suffered any sum of money as far as. So here is a very positive development for Pakistan. And this positive development is for overseas Pakistanis. They can invest in Russian
They can bring their money in Russian digital accounts, invest in the bank's products, invest in the Nea Pakistan certificates, buy stock, buy property, and most importantly, they can take their money back. It is safe, the payment system is safe, and we are as vulnerable to the hackers like anywhere else in the world. So we are cognizant of the risks that are available, that are there, and the financial sector takes all such steps to protect the integrity of the financial system as well as security of the data. We operate in the global environment like anybody else. Thank you so much, sir. Thank you, Saeed Irfan Ali Saab. Now I invite Mr. Arshad Mahmood Bhatti. He is Director, Exchange Policy Department of State Bank of Pakistan. He has 21 years of experience in central banking. In State Bank of Pakistan, he remained associated with banking supervision, enforcement, and on-site inspection functions. He is a fellow member of the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. Over to Mr. Arshad Bhatti. Thank you, Bhutta Sahab. बहुत नवाजिश जी. Assalamu alaikum everybody and welcome to this webinar. We are thankful to our hosts, Mr. Bhutta, and to our Honorable High Commissioner of Pakistan in Canada for giving us this opportunity to interact with the community there. Bhutta Sahab, can I share my screen now? Yes, yes. I don't have rights of sharing screen. So if you allow me, please. इन द मीन टाइम जो रोशन डिजिटल अकाउंट का एक इनिशिएटिव है, प्राइमरली ये इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया है कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों को पाकिस्तान के साथ एक रब्त दे सकें, एक उन्हें जोड़ सकें पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ, और इस तरह वो अपने फैमिलीज के साथ भी जुड़े रहेंगे और बैंकिंग सिस्टम के साथ भी जुड़े रहेंगे. अब रोशन डिजिटल अकाउंट का जो बैकग्राउंड है या पर्सपेक्टिव है, एक तो इसका रब्त है, दूसरा ये है कि हमारे जो, जैसे हाई कमिश्नर साहब ने भी फरमाया कि लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी जब वो पाकिस्तान में अकाउंट खोलने की कोशिश करते थे, बाहर रहते हुए उन्हें यहाँ आना पड़ता था फिजिकली, और अगर अकाउंट कोई डोरमेंट हो जाता है तो उसकी जो रीएक्टिवेशन है उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा कम्बरसम था माजी में. ये दोनों मैकेनिज्म्स हमने कोशिश की है इस इनिशिएटिव में रिजॉल्व करने की, और कोशिश ये की है कि आपको पाकिस्तान आए बगैर, किसी भी सफारत खाने के किसी भी दफ्तर जाए बगैर आपको ये अकाउंट खोलने की सहूलत मुयसर हो, और इन अकाउंट से फिर आप अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी कर सकें. बेसिकली ये अकाउंट प्रेजेंस लेस अकाउंट है जो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मुयसर है आपकी यहाँ मौजूदगी के बगैर. इस अकाउंट के दो की फीचर्स हैं जो मैं पहले ही बताता चलूँ. एक ये फीचर है कि इस अकाउंट में फंड्स बाहर से रेमिटेंस के तौर पे आ सकते हैं. इसमें पाकिस्तान के अंदर से फंड्स डिपॉजिट नहीं हो सकते. मैं एग्जिस्टिंग फंड्स अपने पाकिस्तान के अंदर से इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता. और दूसरा ये कि इसमें जितने भी फंड्स आपके आएंगे उसमें से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, और जो रिमेनिंग फंड्स आपके हैं जो आप यूटिलाइज अगर नहीं कर रहे लोकली, तो वो फंड्स किसी भी वक्त कहीं भी आप अपने अकाउंट्स में वापस ले जा सकते हैं, या आप कोई भी लेजिटिमेट पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड. तो मैं इसकी चीदा निकात आपके सामने रखूंगा, फिर हम सवाल जवाब के सेशन में इंशाल्लाह बाकी सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा ये कि एक फर्स्ट टाइम हमने ये इनिशिएटिव लिया है और ब्रांच के जाए बगैर अकाउंट्स हमारे जो इस वक्त मुयसर हैं वो पाकिस्तानी करेंसी और फॉरेन करेंसी में मुयसर हैं. एक सवाल मैं देख रहा था, एक साहब ने कहा कि कैनेडियन डॉलर में मुयसर है, तो रेगुलेटरी परस्पेक्टिव से कैनेडियन डॉलर एक हमारी कन्वर्टेबल करेंसी के तौर पे हमने उसे डेजिग्नेट किया हुआ है और उसमें अकाउंट खोल सकता है. अब ये बैंकों पे मुयसर है, कुछ बैंक उसमें आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ये टारगेट मार्केट अगर इतनी होगी तो बैंक्स उसमें ज़्यादा बैंक्स आएंगे इसमें कैनेडियन डॉलर के अकाउंट भी देने में. अभी ज़्यादातर बैंक्स जो दे रहे हैं यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, और कुछ बैंक्स ने इसी तरह यूएई दिरहम और सऊदी रियाल भी ऑफर किया है. तो मैं अपने बैंक के जो साथी इस वक्त हमारे साथ इस वेबिनार पे मौजूद है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कैनेडियन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त कनाडा में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए कैनेडियन डॉलर के अकाउंट्स की भी फैसिलिटी को एक्सप्लोर करके जल्द अज जल्द उसे ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करें. दूसरा इसमें आईडी सिंपल आईडी डॉक्यूमेंट्स और उसका प्रोसेस है, और एक ये कि अकाउंट्स जो हैं वो हमने बैंक से जो कमिटमेंट लिया है कि 48 घंटों के अंदर खोलने हैं बैंक ने.
अब उसमें बाज़ औक़ात प्रोसीजरल डिलेज इस सेंस में आ सकते हैं कि उनके कोई अगर आपसे डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है उन्हें, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपने जो मुमकिन तौर पर मुकम्मल नहीं दी, तो उसकी वजह से वापस आपको आके पूछ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मुकम्मल दें या डॉक्यूमेंट दुरुस्त अंदाज में जमा करें। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इसमें मुयस्सर हैं, आप किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में कर सकते हैं इसमें, और पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं। और फिर इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर हैं। अभी 3 एवेन्यूज़ मुयस्सर हैं, उन 3 एवेन्यूज़ के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि फंड्स कैन बी रेमिटेड आउट हैसल फ्री विदाउट एनी परमिशन और अप्रूवल रिक्वायरमेंट। फॉर नाउ वी हैव 8 बैंक्स इन पार्टनरशिप इन दिस, जिन बैंकों में आप अकाउंट खोल सकते हैं उसमें बैंक अल्फलाह है, फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान है, सांबा बैंक है, एमसीबी पाकिस्तान बैंक है, यूबीएल है और एचबीएल है। तो अभी इन 8 बैंकों के साथ आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बैंक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको जब आप बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे पोर्टल पे, तो वहाँ उसकी कुछ आपका एजुकेशनल मटेरियल भी वहाँ मुयस्सर है। बैंक्स ने वहाँ पे ट्यूटोरियल भी रखे हुए हैं, और आपको एक अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस से वहाँ से गुजारते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं, जिसमें आपकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपका नाम है, आईडी है, पासपोर्ट है, नेशनैलिटी क्या है, आपकी फ़ोन नंबर, मेलिंग एड्रेस, और अगर आप पे यूएस सिटीजन या कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का डिक्लेरेशन लागू होता है तो उसका एक डिक्लेरेशन है। आपको उसमें अपना प्रोफेशन का बताना है कि आप किस शोबा से मुंसलिक हैं, और आपकी सैलरी के सोर्सेज क्या हैं या इनकम के सोर्सेज क्या हैं। और अगर आपका इस वक्त कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो आप जिसकी इंफॉर्मेशन देना चाहें। और इसके अलावा जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमने कोशिश की है कि बड़ी सिंप्लीफाइड रखें। यहाँ मैंने चंद चीज़ें का तज़किरा किया, चंद चीज़ों का, लेकिन हमने बैंक्स को जो लिस्ट दी है उसमें एक तो इसके आपके आईडी डॉक्यूमेंट लाजमी होने चाहिए होगा कॉपी, इंक्लूडिंग सीएनआईसी, नाइकॉप, पीओसी, पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस। और इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए कोई एक या 2 डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम बैंक को चाहिए हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और वो कोई 21-22 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। मसलन आप अपना सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या आप अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये आपका प्रोफेशन है। इसी तरह की, या आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दे सकते हैं। तो कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट मैक्सिमम उसमें चाहिए होंगे। एक डॉक्यूमेंट ये साबित कर सके कि प्रोफेशन कौन-सा है आपका, और दूसरा ये कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे। और बाज़ केसेस में ये भी मुमकिन है कि कोई एक डॉक्यूमेंट दोनों चीज़ों के लिए कारआमद हो सकता है। इसी तरह तीसरा एक इसमें जो पहलू है वो ये है कि आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा बैंक का सिस्टम उस वक़्त, ताकि ये इस चीज़ का सद्भाव किया जा सके कि कोई बंदा आपकी आइडेंटिटी को चुरा के इम्पर्सोनेशन करके अकाउंट तो नहीं खोलने जा रहा। तो दैट्स व्हाई लाइव फ़ोटो की एक इसमें फ़ीचर डाला है, और आपको लाइव फ़ोटो अगर आप दुरुस्त अंदाज़ में कैप्चर होती है, तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। और फिर इसमें डिजिटल सिग्नेचर की ऑप्शन भी मुयस्सर है। तो इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स का सूट अवेलेबल है, उसमें आप लोकली पाकिस्तान के अंदर भी हर किस्म की लेजिटिमेट पेमेंट कर सकते हैं। आपको बैंक्स डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स भी ऑफर कर रहे हैं, और 1-2 बैंक अभी क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड और इस तरह की प्रोडक्ट्स भी आपको ऑफर कर सकते हैं। आप वहाँ पेमेंट्स के लिए चाहे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान में पेमेंट करके कोई घर वालों को कोई चीज़ मुहैया करना चाहते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, घर वालों के यूटिलिटी बिल्स हैं, या और किसी किस्म की लेजिटिमेट पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो इन अकाउंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू मौजूद हैं। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, जो गवर्नमेंट ने इजरा जिसका शुरू कर दिया। उसका फॉर्मल लॉन्च प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनकरीब करना है, लेकिन इजरा इसका शुरू हो चुका है और इसमें लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट्स डॉलर डिनोमिनेटेड भी हैं और रुपी बेस्ड भी मुयस्सर हैं। उन पे बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। इसी तरह दूसरी ऑप्शन आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, जो शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कोट हो रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। और तीसरी ऑप्शन प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी इस वक्त इंटीग्रेशन हो चुकी है डीएचए की। डीएचए ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी जारी की हुई है। तो उसमें जो ही डीएचए इस चीज़ को ओपन करता है, आप अप्लाई करके उसमें प्लॉट भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी की ये भी ऑप्शन है कि आप प्राइवेटली भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन फंड्स इस अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे, और आपने बैंक को बताना होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी की फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स एक स्पेशल सर्टिफिकेट्स का इजरा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस आरडीए स्कीम के साथ ही। इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज की कि यूएस डॉलर और पीकेआर डिनोमिनेटेड है। इसका जो टेनर्स हैं, मुद्दत है उसकी 3 माह से लेकर 5 साल तक मुद्दत है।
और उसमें अर्ली इनकैशमेंट भी अलाउड है। इनमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। यूएस डॉलर सर्टिफिकेट्स पे 5.5% 3 माह के लिए, और जो 5 साल वाले हैं वो 7% तक है। इस तरह पाकिस्तानी रुपये के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें 9.5% से लेकर 11% तक सालाना मुनाफा इसमें मुहैया किया गया। इसमें टैक्स की जो शरह है मुनाफे पे वो 10% है सिर्फ, और वो फुल एंड फाइनल टैक्स कंसिडर होगा। इसमें शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी इस वक्त रोल आउट हो चुकी है, और कन्वेंशनल वर्जन भी मुयसर है। और इसकी भी जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं, जैसे मैंने पहले इसकी फुली रिपेट्रिएबल हैं। इसके अलावा जो इसमें यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, वो ऐसे रेजिडेंट पाकिस्तानी भी खरीद सकते हैं जो अपने जिनके असासे बाहर हैं और उन्होंने वो असासे एफबीआर के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ डिक्लेयर किए हुए हैं। दूसरा एवेन्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो शेयर्स में है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके लिए एक बैक एंड पे हमने एक बड़ा आसान सा मैकेनिज्म रखा है। हमारे इन बैंकों ने बैक एंड पे इंटीग्रेट किया है अपना सिस्टम विद सेंट्रल डिपॉजिटरी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो पाकिस्तान की है। और वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी आपके बिहाफ पे और आपका जो ब्रोकर है उसके बिहाफ पे क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम कर रही है। तो आपने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू एक बैंक को कंसेंट देंगे, अपना इजाजतनामा देंगे कि मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए करना चाह रहा हूँ, और आप मेरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सीडीसी के साथ शेयर कर लें, ताकि सीडीसी को आपके अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को दोबारा ना रन करना पड़े। तो जब आप इंफॉर्मेशन सीडीसी को देंगे तो वो सीडीसी के एक वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और फिर सीडीसी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ ब्रोकर्स की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की हुई है अपनी ड्यू डिलिजेंस करके। तो आप उनमें से कोई एक अपनी मर्जी का ब्रोकर चूज कर सकते हैं, फिर उस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुल जाएगा। जब आपने ट्रांजैक्शन करनी होगी तो आप जो अगर खरीदारी की ट्रांजैक्शन करनी है, कोई शेयर्स खरीदने हैं, तो उस ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीद सकते हैं, उस ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके या उसकी ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके। और दूसरी साइड पे आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप मेरे लिए मैं इतने अमाउंट के शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो इतने अमाउंट्स के फंड आप सीडीसी को मुहैया कर दीजिए। तो सीडीसी के पास जब आपकी तरफ से फंड्स की विजिबिलिटी आ जाएगी, दूसरी तरफ से ब्रोकर की तरफ से ये क्लियरनेस आ जाएगी कि हाँ मैं ये डील करना चाह रहा हूँ और ये शेयर्स मुयस्सर हैं इस कस्टमर के लिए, तो सीडीसी उस ट्रांजेक्शन को मैच करके क्लियर कर देगा, और आपको शेयर्स आपके अकाउंट में जो आईपीएस अकाउंट है आपका उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे सीडीसी के पास, जो इन्वेस्टर अकाउंट है, और जो पेमेंट है वो सीडीसी आगे पुश कर देगा ब्रोकर को। और इसी तरह जब आप सेल साइड की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ब्रोकर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ, और ब्रोकर सेल करके आपकी प्रोसीड सीडीसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके अकाउंट में पुश करवा देगा, और ये फंड्स भी आप फिर रिपेट्रिएट कर सकते हैं मुनाफे के समेत। प्रॉपर्टीज के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि डीएचए का एक सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है, और उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपना एक पोर्टल के जरिए एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च कर दी है। तो एक आप उसके जरिए अपना प्लॉट चूज करके उनके थ्रू अपने आईडी नंबर आइडेंटिफाई करके फिर आप इस बैंक के इस अकाउंट के थ्रू जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसकी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो यकमुश्त पेमेंट है आपकी या एक साथ में पेमेंट है। और जो अगर आपने डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करनी है तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करनी है। आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके बैंक को आपको इस केस में जिस भी अपनी काउंटर पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट वैल्यू करवाने के बाद बैंक को मुहैया करनी है कि मैं मसलन ये अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ या घर खरीद रहा हूँ, इसकी वैल्यू एक्स अमाउंट है। तो वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर उसकी वैल्यूएशन करके बैंक को मुहैया करेगा, और उस वैल्यूएशन की बेस पे आपकी ट्रांजैक्शन के लिए फंड्स जो आपका एग्रीमेंट होगा सेल परचेज का जिस कस्टमर से आप खरीद रहे हैं काउंटर पार्टी से, वो फंड्स बैंक उस काउंटर पार्टी को एक इंस्ट्रूमेंट की सूरत में या उसके अकाउंट में क्रेडिट की सूरत में ट्रांसफर कर देगा। और इस केस में आप अगर किसी सोसाइटी के साथ या जैसे डीएचए के साथ है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं और यकमुश्त भी कर सकते हैं थ्रू दीज अकाउंट्स। इस तरह आप इन अकाउंट्स के जरिए जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस प्रॉपर्टी पे अगर आपको कोई रेंट मिलता है, मसलन आप अपार्टमेंट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं और वो किराए पे देते हैं, तो उसका किराया भी आप अपने इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स में वसूल कर सकते हैं। जिस टेनेंट को भी आप देंगे घर या अपार्टमेंट किराए पे, तो टेनेंट के अकाउंट से फंड्स आने चाहिए। आप अपना टेनेंसी एग्रीमेंट जो किराएनामा है वो बैंक में जमा कराएंगे साथ उस टेनेंट की अकाउंट की डिटेल से, और वो एक टेनेंट अपने अकाउंट से आपको माहाना या उसके तहत आप एग्रीमेंट के तहत फंड्स वसूल करना चाहते हैं, उसके अकाउंट से डायरेक्ट फंड आपके अकाउंट में आएंगे और आप उन फंड्स को भी फिर रिपेट्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस वही प्रोसेस में सेल साइड पे भी आपको एक दफ़ा वैल्यूएशन करवानी है, और फिर वैल्यूएशन के बाद आपकी जो सेल ट्रांजैक्शन की प्रोसीड्स हैं
जिसको आपने बेचा है बायर, उस बायर से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी है, या बायर आपको इंस्ट्रूमेंट देगा और वो इंस्ट्रूमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट बायर ही की तरफ से बना होना चाहिए, या वो बायर के अकाउंट से डायरेक्ट आपको फंड ट्रांसफर होनी चाहिए। इसमें कैश नहीं जमा हो सकती सेल की ट्रांजैक्शन के हवाले से। और जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो आप वो प्रिंसिपल और रेंटल वैल्यू दोनों आप रिमिट आउट कर सकते हैं। जो आपके पास सेल प्रोसीड्स हैं वो रिमिट आउट कर सकते हैं। बाद सूरतों में ये हो सकता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है सेल साइड की, जब आपने प्रॉपर्टी बेची है अपनी, तो आपकी प्रॉपर्टी पे आपको उससे जितनी की आपने खरीदी थी उससे ज्यादा पैसे मिले हैं, यानी कैपिटल गेन हुआ है। तो वो कैपिटल गेन भी आप बाहर ले जा सकते हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने के 3 साल बाद बेची है तो कैपिटल गेन उसी वक्त आप वापस ले जा सकते हैं। लेकिन अगर खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर बेची है तो आपको कैपिटल गेन में वापस रिपेट्रिएट करने के लिए वो 3 साल की मुद्दत पूरी करना जरूरी होगी। सिर्फ ये एक हमने छोटा सा कंट्रोल रखा है ताकि हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट उन हमारे जो मुतवसत तबका है उसकी पहुंच से बाहर ना हो जाए। इस सारे काम को मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए स्टेट बैंक ने बैक एंड पे एक कस्टमर सपोर्ट का मैकेनिज्म बैंक्स को गुजारिश की है। तो बैंक्स ने अपने यहाँ एक लाइव कस्टमर सपोर्ट का मैकेनिज्म भी रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने हेल्पलाइन के नंबर्स भी दिए हुए हैं, ईमेल आईडीज भी हैं और चैट बॉक्सेस भी हैं उनकी वेबसाइट पे। और आपकी अगर कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो आप उनके इन तीनों एवेन्यूज से उनको कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और अपना मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने अपने यहाँ डेली रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ है, जिसमें रोजाना कितने अकाउंट्स खोल रहे हैं, किस किस्म की कंप्लेंट्स आ रही हैं, कस्टमर्स की क्या फीडबैक आ रही हैं। उन फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए फिर इसे बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हम बैक एंड पे फिर कस्टमर जो बैंक्स के कंप्लेंट सेंटर्स हैं उनके साथ भी इन इश्यूज को टेक अप करते हैं, और जो फीडबैक हमें आ रही होती है उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। खुसूसी तौर पे हमारा जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जैसे ट्विटर है या फेसबुक है, उस पर हमें जो फीडबैक मिल रही है उसे भी कैप्चर करते हैं हम अपने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में, और फिर उससे जो उनकी मसाइल की निशानदेही जो कर रहे होते हैं कस्टमर्स, उनकी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं बैंक के साथ मिलकर। गोइंग फॉरवर्ड हम कोशिश ये करेंगे कि इस इनिशिएटिव से जो नताइज जिसके सामने आ रहे हैं हम पब्लिकली भी लोगों के साथ शेयर कर सकें। हमारी वेबसाइट पे आप जाएं तो वेबसाइट पे हमारी एक फ्रंट पेज पे वेब पेज मौजूद है। मैं उसका आपको थोड़ा सा वो डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा। तो उस पे आपको सारे इनिशिएटिव की तफसील भी मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे हमारे जो हैंडल्स हैं उस पर वक्तन फ़ौक्तन इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो अपडेट होती है वो हम शेयर करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। इस तरह जो हमारी वेबसाइट है उस पे ब्रोशर भी मुयस्सर है, टीवी कमर्शियल्स में 1-2 मुयस्सर हैं। इस तरह गवर्नर साहब का मैसेज वेबसाइट पे मौजूद है। इसी तरह ये मैसेजेस और ये ब्रोशर्स और ये जो टीवी कमर्शियल्स हैं ये यूट्यूब चैनल पे भी मुयस्सर हैं। और हमने इसमें एफएक्यूज भी डाले हुए अपनी वेबसाइट पे, जो कि आप देख सकते हैं जाके। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो हम नहीं एड्रेस कर पा रहे तो आप हमें हमारा जो आरडीए सपोर्ट वाला फीडबैक का एक हमने आईडी यहाँ स्प्लैश किया हुआ है इस वक्त स्क्रीन पे, rdssupport@spp.org.pk है। तो वो सवाल आप अपना इस ईमेल आईडी पे भी रेज कर सकते हैं। या कोई और आपका इस तरह का कंसर्न है, कोई सर्विस क्वालिटी का कंसर्न है तो, या कोई और शिकायत है तो वो भी आप हमारे इस ईमेल आईडी पे थ्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट का एक वो हल्का सा वो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी वेबसाइट कैसे इस पे काम कर रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जस्ट एक दफा वेबसाइट का वो दे देता हूँ ताकि लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन जी। हियर वी गो जी। ये हमारा मेन पेज है स्टेट बैंक का, और ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल के तहत इट इज़ सिक्योर्ड वेबसाइट। इसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और इसी तरह सारे बैंक्स की वेबसाइट सिक्योर्ड है। इसमें हमारे पास यहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट का एक आइकन आ रहा है और दूसरी साइड पे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का आइकन आ रहा है। तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के आइकन में जाके इसकी तफसीलात नीचे देख सकते हैं सारी, और इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के आइकन में जाके आप तफसीलात देख सकते हैं। इसमें एफएक्यूज का एक टैग है, एफएक्यूज में जाके आप एफएक्यूज देख सकते हैं। इस तरह नीचे जाएंगे तो आपको एक गवर्नर साहब की वीडियो है इस तरह, और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन मटेरियल मुयस्सर है। तो एनपीसीज की डिटेल एनपीसीज के उसमें टैब पे भी मिलेगी और इस पे भी कुछ उसकी तफसीलात मुयस्सर हैं। और इसके अलावा बैंक्स की वेबसाइट के लिंक्स भी यहाँ पे मुयस्सर हैं। अगर आपको यहाँ से बैंक की वेबसाइट को लिंक करना है तो यहाँ से भी आप उन्हें लिंक कर सकते हैं इस पेज के थ्रू। और फिर ये एक छोटी सी एक वीडियो है रोशन डिजिटल अकाउंट के फीचर्स के हवाले से, और आखिर में वही हमारा एक जो एड्रेस है आरडीए सपोर्ट का।
तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बूटा साहब, कोई सवालात होंगे तो हम यहाँ ए बॉक्स भी एड्रेस करेंगे, और अगर कोई आप वैसे पूछना चाहे तो। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच अरशद महमूद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खोल कर बातें बयान की।